Okay. So my screen is visible, right? Screen is visible or not? Students? Yes, sir. Okay, that's good. Three books you can follow. Look, for theory portion, for kind of notes, right? तो एक रस्तोगी का बुक होता है, रस्तोगी, जो सेमिस्टर के लिए नोट्स के काम करेगा, रस्तोगी, भीड़ वाला रस्तोगी। नंबर 2, फुटुआमा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बहुत अच्छा दिया हुआ है फुटुआमा में, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह बहुत अच्छा, डॉगलस फुटुआमा। ओके। और एक और बुक है, वो है स्ट्रिक बर्जर्स इवोल्यूशन। इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो ये 3 बुक अच्छा होता है। तो इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 बुक बहुत अच्छा बुक है, यू कैन फॉलो दैट। ठीक है। नाउ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसका मतलब है, थ्योरी मतलब theories that explain how transformation of species occur. Theory that explain how the transformation of species occur. Okay, मतलब एक स्पीसीज कैसे इवॉल्व होता है दूसरे से। देखो, एक था लैमार्क, लैमार्क के थ्योरी, राइट। उसके बाद डार्विन, देन सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी। तो तीनों ही थ्योरी था। हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन? राइट, आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम टेकिंग क्लास। ओके, सो लैमर्किज्म, डू यू नो व्हाट इज लैमर्किज्म? इसका मेन पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट नोट इन्होंने बोला था? हम्म, एनीवन? You have studied it in your 10th standard, right? So you should say something about it. So he gave the idea The of idea of inheritance of inheritance acquired of acquired characters. characters. Anything else? There, Use and disuse idea. idea. Exactly, and use and disuse idea, not disuse of organ, right? So explain it in your own language, not necessarily whether it is Hindi or English, but try to speak it in English, and if not possible, then in Hindi. Okay, and if you are feeling uncomfortable, then you can say it in your local language. Explain what is use and disuse theory. Continuous use of some organ increase in size and function. It increases the capacity of its function, and disuse of some organ gets degenerated by time. Exactly. So, if there is a continuous use of the uh, new organ, then it lead to the modification. Okay. So, individual uh, who is using a particular organ continuously for the long time,
so it is modifying, right? And if not using for the long time, then it will be lost and there will be no function of the organ and become degenerated, right? तो ये था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, राइट? एंड व्हाट अदर्स? टू बहुत सारे तो उन्होंने दिया था, लेकिन दो मेजर था, तो हम लोग थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे। तो एक मेजर मेगा हैज आंसर्ड, राइट? एंड अनदर वाज वेरी पॉपुलर। सो दो मेजर था, तो हम लोग मेन पोस्टुलेट के ऊपर बात करेंगे। तो उसके पहले ये बोलते कि क्या, तो लेमार्किज्म is the first theory of evolution, right? Lamarckism is the first theory of the evolution, so which is proposed by Jean-Baptiste Lamarck. Okay, and you know that in which book? Philosophy of Zoology. Yes. So he gave the outline of this theory in 1801. Okay, and his idea was referred by the word transformism. What? Transformism. Okay. So the year Darwin was born, 1809, he published his hypothesis. Okay, he published his hypothesis, and he explained his findings using two principles, and that were widely accepted at the time. One is the use and disuse of organs, and other the inheritance of acquired character, right? बट ये दो मेजर था, लेकिन उसका मेन पॉस्टुलेट में क्या क्या था? इंटरनल वाइटल फोर्स। ओके, सो इंटरनल वाइटल फोर्स क्या चीज है? लेमार्क बिलीव दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सम इंटरनल वाइटल फोर्सेस, मतलब विल पावर। ओके, एंड ही कैन डेवलप न्यू स्ट्रक्चर और ऑर्गन अकॉर्डिंगली। ओके, मतलब यही कि इवोल्यूशन हुआ इसीलिए क्योंकि एक इनेट ड्राइव, इनेट बिल्डिंग उसमें काम करता है। तो उन्होंने तो वाइटल फोर्स के बात तो कर दिया, लेकिन व्हाट इज वाइटल फोर्स, व्हाट इज वाइटल फोर्स, he didn't explain, they didn't mention or explain. ओके, तो सच में मान लो कि अगर जो बर्ड्स है, बर्ड्स आर फ्लाइंग नाउडेज, ठीक है? तो एक टाइम था इसके हिसाब से वो बर्ड्स उड़ नहीं सकते, तो उन्होंने मन मन में ऐसे सोचा कि मैं उड़ूंगा उड़ूंगा उड़ूंगा, ऐसे करके एक दिन उड़ गया। ऐसे तो वो उसका व्हीलिंग पावर से वो ऐसा हो गया, ठीक है? तो इसका कोई, तो ये तो डिस्कर्टेड हो गया। सेकंड, बॉडी साइज लार्ज। सो बॉडी साइज लार्ज में क्या क्या बोला कि विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस देयर बॉडी साइज लार्ज। तो ये एक लेमार्क था। थर्ड, फ्लक्चुएशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। सो उसके हिसाब से एनवायरनमेंट इज डायनामिक and changes over the time. Whenever it changes, it becomes adverse for existing life form, and then it develops a new need accordingly as it need to fulfill the new demands. Okay, मतलब develop new organs or appendages by using the internal vital forces. So एक कुछ हद तक तो ठीक ही है ना, फ्लक्चुएशन of environment and new needs. Okay, next, use and disuse of organ. इसमें जो उन्होंने बात बोला, तो मेगा ने ये बात बोल दी, तो इसमें ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन रेगुलरली फंक्शन रहा वो उसका बेद और भी मॉडिफिकेशन होगा, और जो नहीं हो रहा है वो डिजेनरेट होगा, ठीक है? एंड अनदर, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर है,
मतलब कोई अच्छा क्रिकेट खेल पा रहे है तो उसका बच्चा अच्छा क्रिकेटर होगा, ये एक वर्ड कैरेक्टर है। सच कोई अच्छा बॉडी बिल्डर है, उसका बच्चा जो बॉडी बिल्डर ही निकलेगा, ऐसा। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ, वो एक्वर्ड कैरेक्टर है, नॉट इनेट कैरेक्टर, राइट। तो ये भी डिस्कार्डेड। लेकिन अगर देखा जाए तो लेमार्क की थ्योरी जो है उसका कुछ सपोर्ट भी है, राइट। उसका सपोर्ट कैसा है? लॉन्ग नेक्ड जिराफ, राइट। तो लॉन्ग नेक्ड जिराफ के केस में जिराफ पहले क्या होता था, शॉर्ट नेक्ड रहता था, लॉन्ग नहीं था। ओके, सो कैसे हुआ ये शॉर्ट नेक्ड जिराफ से लॉन्ग हुआ? कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक मसल, राइट। तो जो लंबा लंबा पेड़ है उससे फूड ढूंढने के समय ये जो मसल्स स्ट्रेच होता है, ऐसे करके उसका जो नेक होता है वो बढ़ता गया। ओके, so at the beginning short necked giraffe used to eat the grasses, okay, but later on sources of grass on land reduced and it forced to eat the leaves of the tall tree, and stretching of the neck is continuous and gradually transmitted to offspring. Next, limb of snake. The continuous creeping through the holes and creeping made snake's body elongated, and due to the continuous disuse of the limbs, because uh, they hinder while creeping in burrows and result in loss their limbs. Okay, so in the same way, bestial organs in human and the other animals, so the disuse of the organ, right? The web of hind limb of frog. So development of webs on the hind limbs of frogs and ducks as well. So for the swimming, because they used more continuously in search of food. Okay. So examples of Lamarckism: cave fishes are blind. One thing. So the eyes are degenerated due to the lack of use for the long time in case of cave fishes. Okay. Giraffe neck as well. Okay, so these were kind of support or evidence to prove Lamarckism. Okay, but Lamarckism is unsupported by the scientific evidences. What is the criticism? What is the criticism of Lamarckism? The evolutionary trend in certain groups of organisms may be associated with increase in size as mentioned by Lamarck, but there are many examples of organisms where evolution brought about the reduction of the size. Okay, तो उन्होंने ये बोला कि वो क्या एवोल्यूशन के टाइम उसका साइज तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ड्यूरिंग लाइफ फॉर्म टू ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज नॉट पॉसिबल। सो ये भी एक होता है, राइट। तो ये सब होगा लेमार्क के अगेंस्ट में। तो लेमार्क के जो ये लेमार्क ये जो बोल रहा था, उसके बाद इसके अगेंस्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। जो एक्सपेरिमेंट में था क्या, किसका एक्सपेरिमेंट, डू यू नो? एक्सपेरिमेंट किसने किया था? किसने किया था लेमार्क के अगेंस्ट में? किसने किया था? Hugo de Vries. No. So Weizmann. Yeah, very good. So he was good critic of Lamarck. Okay. तो इसके जो जर्मप्लाज्म थ्योरी बोलते हैं, राइट। तो क्या करते हैं वो, सेवरल जनरेशन में क्या किया, तो एक रेड वगैरह है, इसको 22 जनरेशन तक टेल कट करके रख दिया। ठीक है, टेल कट कर दिया रेड को,
देन उसका रिप्रोडक्शन कर लिया, तो उसके बाद 22 जनरेशन तक देखा कि देयर वेर एनी टेललेस माउस और नॉट, बट सब में टेल था, किसी में ऐसा नहीं कि वो टेल गायब था, ठीक है। So he said that changes which is made in the somatic cell do not transfer the next generation. Hence, ये गलत है, ठीक है। ये थ्योरी जो एकॉर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन जाने के लिए जो थ्योरी है वो गलत है, ओके। तो थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म किसने दिया था? वाइजमैन ने, ठीक है, अगस्त। Okay, so tailless mouse was not born even after the 22 generation of mice. They were cut their tail for an experiment which was done by August Weismann. Okay, so Weismann proposed the theory of continuity of germplasm. Okay, ठीक है। So तो वाइटल फोर्स का जो बोला था वो भी गलत है, ठीक है। तो वो लेमार्किज्म का फर्स्ट प्रिंसिपल था, वो भी रॉन्ग था, विच कैन इंक्रीज द बॉडी फैट अकॉर्डिंग टू हिम। सो यूज एंड डिसयूज थ्योरी एकमात्र है जो ठीक हो भी सकता है, लेकिन काफी साइंटिस्ट ने इसका क्रिटिसाइज भी किया है, ओके। और जो एकॉर्ड कैरेक्टर वो भी, तो ये रिजेक्टेड है, ठीक है। न्यू लेमार्किज्म क्या हुआ? द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेमार्किज्म, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेमार्किज्म इज न्यू, राइट। मतलब लेमार्क की जो थ्योरी था उसमें जो जो चीज गलत था, न्यू लेमार्किज्म, मतलब लेमार्क की जो थ्योरी था उसमें जो जो गलत था उसको मॉडिफाई करके एक नया तरीके से इसको पेश करना, ठीक है। तो उसमें क्या था? एनवायरमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म एंड चेंज इट्स हेरिडिटी। एक एटलीस्ट सम ऑफ द वेरिएशन एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल कैन बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। कुछ कैरेक्टर, internal vital forces do not play any role in evolution. Only those variations are passed onto the offspring which affect germ cell, or where somatic cell give rise to the germ cell. Understood? तो ये जो अलग अलग सा ये नया तरीके से लेमार्किज्म को पेश किया गया और वो काफी ठीक ठाक भी है, ठीक है। तो ये किसने दिया था? अगस्त, वो नेक्स्ट साइंटिस्ट डॉब्जन्स की वगैरह, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार ये सब लिख लो पॉइंट वाइज, जो मैं पॉइंट बोला बस इस हिसाब से लिख लो। Sir, यस, please repeat neo-Lamarckism. न्यू लेमार्किज्म। तो न्यू लेमार्किज्म है वो चीज जिसमें क्या हुआ, जो लेमार्क ने जो जो चीज गलत बोला था, ठीक है, उसको कुछ जगह कुछ टर्मिनोलॉजी से कुछ वर्ड को इसको चेंज करके नया तरीके से इसको पेश किया गया था। जिसमें क्या था, जैसे कि फर्स्ट उन्होंने क्या बोला था, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं हेरिडिटी में, चेंज इन हेरिडिटी, उसको चेंज किया गया। एनवायरमेंट डज इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म
क्या डजंट बोला था मैं? एक्चुअली एनवायरमेंट डज इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म एंड चेंज इट्स हेरिडिटी, राइट। एक दूसरा उसने क्या बोला था, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो पास करता है, लेकिन जो जो सोमाटिक सेल में होता है चेंजेस, वो नहीं जा सकते एक जनरेशन के दूसरे जनरेशन। सो ओनली दोज वेरिएशन आर पास टू द ऑफस्प्रिंग which affect the germ cell or where somatic cell give rise to the germ cell, okay। और वाइटल फोर्स में उन्होंने बोला था कि वाइटल फोर्स जो है वो इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इंटरनल वाइटल फोर्सेस डू नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। तो ये था न्यू लैमार्किज्म। नव लैमार्किज्म के बाद जो आएगा वो क्या है? डार्विनिज्म। यस, तो डार्विनिज्म। सो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन was born in 1809, जिस ईयर में क्या हुआ, वो जो पोस्टुलेट्स है लेमार्क ने वो दिया, ठीक है। सो वेस्टर्न इंग्लैंड में उसका जन्म हुआ। तो डार्विन उसने ग्रेजुएशन के बाद बहुत जगह अलग अलग जगह वो ट्रैवल किया एज ए नेचुरलिस्ट। वैसे ही एक टाइम 1832 टू 1837, 1832 टू 1837 5 इयर्स, ओके। उसने एज बोलो जो एक पर्टिकुलर क्या था बुक का नाम, हाँ उसका क्या नाम था? HMS Beagle. यस, तो HMS बीगल में वो ट्रैवल किया, ठीक है। सो ही ट्रैवल थ्रू द साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइलैंड, ओके। Charles Darwin was a gentleman of independent means, okay। The crucial period of his life was a year so after the Beagle voyage, मतलब 1837 की बात, okay। So he spent most of his time by observing the natural flora and fauna and collecting insects, samples, adaptation behavior of them and many more. Okay. Darwin later called Galapagos Island as living laboratory of evolution. Okay. So as he worked over his collection of birds from the Galapagos Island, he realized that he should have recorded which island each specimens came from. Okay, so because they varied from the island to the island. Okay, so he had initially supposed that the Galapagos finches were all one species, but it now became very clear that each island had its own distinct species. Okay, तो साइंटिस्ट वो जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में था, तो वो इस टाइप का साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी है क्या? ऑब्जर्वेशन, ओके। सो उन्होंने क्या देखा, कौन सा बर्ड था उधर? फिंच। फिंच, या। सो वो अलग अलग 14 वेराइटीज का फिंच देखा, राइट। और 14 वेराइटीज का जो फिंच था उसको बोलते हैं क्या? गैलापागोस फिंच, राइट। गैलापागोस फिंचेस। सो द गैलापागोस आइलैंड, it is home of more than a dozen species of closely related finches. Okay, some of them found only a single island, okay, and some other from the different island. Okay, so उन्होंने क्या देखा कि बिग साइज जो है, बिग साइज और बिग का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, राइट। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया।
तो बर्ड्स चाहे सेम हो भी, मतलब उसका कलर से डिफरेंट तो है, लेकिन उसका जो बिग का साइज एंड द स्ट्रक्चर इट वाज डिफरेंट फ्रॉम वन बर्ड टू अनदर। एंड उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि उसका जो फूड हैबिट है वो डिफरेंट है। सम ऑफ द कैक्टस ईटर्स जिसका शार्प बिक है, सम ऑफ द इंसेक्ट ईटर्स, ठीक है, उसका नैरो पॉइंटेड वो बिक है जो इंसेक्ट को ग्रैब कर सकता है, और सम ऑफ द सीड ईटर्स, सो सीड ईटर होने के उनका वो लार्ज होगा थोड़ा सा, ठीक हो, ओके। सो उसके बाद इन्होंने ये कंक्लूड किया कि डिफरेंट फूड हैबिट की वजह से उसका डिफरेंट पिक का स्ट्रक्चर भी हुआ, ओके। सो finches originally belong to the same ancestral population which migrates many years ago from American mainland to Galapagos Island, okay। तो उन्होंने फिंच क्या किया, माइग्रेट कर लिया, ठीक है। So from the original, which was seed-eating variety, finches evolved the different beak form to vegetarian tree finches, insectivorous, and seed-eating finches, and many more, ठीक है। तो एक कॉमन था, उसके धीरे धीरे बहुत सारे में हुआ। तो क्या उन्होंने कंक्लूड किया, तो बहुत सालों पहले क्या हुआ, साउथ अमेरिका तो जो मेनलैंड था उससे ये माइग्रेट करके गैलापागोस किया, किसने, फिंचेस ने, ठीक है। तो उसमें 22 मेजर एंड माइनस आइलैंड था गैलापागोस, राइट। गैलापागोस एक जगह है जिसमें बहुत सारे आइलैंड है, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड है। तो वो ओरिजिनल सीड ईटिंग वेराइटी था, ओरिजिनल जो वेराइटी था वो सीड ईटिंग था, लेकिन हुआ क्या, वो सीड ईटिंग वेराइटी से बहुत सारे अलग अलग वेराइटी निकल के आए, ओके। क्योंकि गैलापागोस आइलैंड में क्या मिलता है, एबंडेंट फूड मिलता है, so it is a good favorable place for the feeding, for the spacing, and partners for the mating, and it is a competition free environment, okay। So finches provide an adaptive radiation, or it is also known as the divergent evolution, okay। So finches also provide an evidence for origin of species by means of geographical isolation, okay। तो geographical isolation के लिए भी ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत सारे केस इसमें आता है, तो स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो दैट्स व्हाई सो मेनी इंफॉर्मेशन you need it, okay। These are like what, like story. If you remember, you will be able to answer many questions, right? So try to remember it. Actually Darwin was impressed by many scientists, many different kind of scientists, okay। Do you know which book was written by Darwin? Huh? Origin of species? Yes, exactly. Darwin read a book, A Principle of Geology, which was by Charles Lyell. So ये कभी कभी दे सकता है, ठीक है, कॉलम ए और बी करके साइंटिस्ट का नेम एंड उसका बुक, जैसे हुआ क्या लेमर के बुक, जैसे हुआ क्या ऑपरेन की बुक, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ बुक देकर उसका ऑथर एंड बुक्स नेम, तो ये देकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो दैट यू नीड टू नो द बुक्स नेम, ओके। But and he also read an article which was published by Thomas Malthus, okay। So Malthus who wrote essay on the principle of population in 1798. He actually said population tend to increase faster than the supply of the food,
ओके, सो ये थॉमस मैल्थस ने लिखा था। तो इसके द्वारा जो नेचुरल सिलेक्शन की बात है वो डार्विन इससे बहुत बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है, थॉमस मैल्थस द्वारा उसका एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल के ऊपर सो उन्होंने क्या बोला था, ही प्रपोज दैट द पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज फास्टर देन द सप्लाई ऑफ फूड, सो सफिशिएंट फूड इज नेवर अवेलेबल फॉर ऑल द पॉपुलेशन एंड लिमिटिंग फैक्टर विल ब्रिंग दैट पॉपुलेशन साइज डाउन। ओके, तो ये बोला था थॉमस मैल्थस ने। थॉमस मैल्थस एंड लेटर अल्फ्रेड रसल वॉलेस। तो यू मे हैव हर्ड अबाउट वॉलेस, राइट? So theory of natural selection is jointly proposed by Darwin and Wallace also. Okay. So theory of natural selection is jointly proposed by the Darwin and Wallace. तो डार्विन के नाम हम लोग सब जानते हैं, लेकिन वालेस थोड़ा अंडररेटेड है, राइट? अल्फ्रेड और रसल वालेस. So in 1858, Darwin read one research paper by the Wallace. Okay, so he believed that the evolution was both the same uh, as what did the Thomas Muller Malthus said. Okay, so and later joined वो रसल की हेल्प से, मतलब वॉलेस की हेल्प से डार्विन ने लिखा क्या, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दो पॉइंट जो है, दो मेजर पॉइंट को एम्फसाइज करता है. क्या क्या? द ऑकरेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन आल्सो. ये दो चीज को ये एम्फसाइज करता है. ओके, सो डार्विन सभी जो उसके प्रीवियसली जो साइंटिस्ट था, इंक्लूडिंग लेमार्क, सबका काम अच्छे से वो पढ़े, ठीक है, लेकिन सबको रिजेक्ट भी कर दिया. सो ये चीज़ याद रखना. ऑल दो डार्विन इज गिवन क्रेडिट फॉर द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अल्फ्रेड वॉलेस proposed a theory of evolution that was quite similar actually to Darwin's theory, and he was a great naturalist who independently proposed the theory of evolution by natural selection. Okay, he proposed that the natural selection is differential survival or reproduction. Okay, सो मेन थ्योरी जो डार्विन ने दिया वो नेचुरल सिलेक्शन के तौर पे दिया था, लेकिन उसका अलग सा कुछ थ्योरी भी था, सच एज थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन. सो डार्विन का आधा थ्योरी क्या क्या था? एक थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, theory of sexual selection. So theory of natural selection, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें उसने टर्मिनोलॉजी दिया, such as overproduction, struggle for existence, variations, natural selection and survival of the fittest, and as well as inheritance of useful variation and origin of formation of new species. Okay, but remember, survival of the fittest, the term it was given by the Herbert Spencer. Okay, the term survival for fittest, it was given by the scientist Herbert Spencer. And natural selection, it is the driving force for the evolution. Okay, and according to Darwin, the fitness was the reproductive fitness. तो उन्होंने रिप्रोडक्टिव ऑफ द फिटनेस की बात कहा. ओके, समझ में आया चीज? देखो,
तो एविडेंसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन के कुछ बात हम लोग करेंगे, ठीक है। such as giraffe neck, तो long neck due to the survival of the fittest, which lead to the natural selection of long neck giraffe. Okay. Second, Darwin's finches. Adaptive radiation is the relatively first evolution of many species from a single common ancestor. And adaptive radiation generally occurs when an organism enters in a new area. Understood? This is the definition. When an organism which enters a new area and different traits affects its survivability. Okay. So adaptive generation रेडिएशन कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। So radiation are emerging in different direction from a common ancestor by course of so radiation like that, right? और बहुत सारे तो एंसेस्टर फिंच, उसका नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंसेक्ट टीचिंग, वुड फेकर टाइप, सीड एडिंग, बहुत सारे अलग अलग था। एविडेंस इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वन बिग एग्जाम्पल वाज दैट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड, राइट। तो उसमें क्या हुआ था, दो टाइप का मौत था, राइट। याद है? डू यू नो व्हाट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड? If you know, please explain. बोलो, what is industrial melanism? वो मौत जो था उसका नाम भी क्या था, ये भी बता दीजिए। Anyone? Please try to answer. You have read it, na? Subsistent betulia. Yes. And do you know the phenomena? So वो पेपर्ड मौत था, राइट। तो दो टाइप का पेपर मौत, वन इज डार्क एंड वन इज लाइट। सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट कलर मौत हाई एंड डार्क मौत लेस, ठीक है। तो लाइट ट्री सो उसमें क्या था, सॉरी। सो लाइट कलर मॉथ जो था वो हाई था, उसके क्या नंबर, ओके। और डार्क कलर मॉथ लेस था, ठीक है। तो पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट रहता था, तो उधर पॉपुलेशन जिधर लेस होगा उसमें लाइकन रहेगा क्या, लाइकन तो उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो इजीली लाइट कलर जो मॉथ होता था तो वो क्या कर सकता था, खाली केवल ब्लैक कलर जो है, तो ब्लैक कलर वो पर्टिकुलरली उसको ही कोई प्रेडेटर ने उसको खा सकता था, ब्लैक कलर उसको लेस अमाउंट है। वाइट कलर उसको क्या हो सकता है, उसको नहीं खा सकते। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट कलर मॉथ लो, नंबर ऑफ द लाइट कलर मॉथ बिकम लो एंड डार्क कलर मॉथ हाई, बिकॉज डार्क ट्री बार्क, जो ट्री बार्क था वो डार्क हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लाइकन का डेथ हो गया एंड हाई पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट हो गया। तो वो इजीली क्या कर रहा है, तो वो लाइट कलर इजीली उस कंडीशन में देख जा रहा था, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो लाइट कलर मॉथ कम होते गया और डार्क कलर मॉथ वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो selective advantage to gene responsible for melanism and dark color moths increase frequently. Okay, so the melanic phenotype of Biston betullaria has been calculated to give fitness advantage around 30%. Okay, so at the end of 19th century, the black color moth almost replaced the original light color moth, okay, by the 90% of the population. Understood? The industrial melanism एक ह्यूज इम्पोर्टेंस इसका था। जो मेन स्पीशीज था वो लाइट कलर मॉथ था, ठीक है।
पहले एनवायरनमेंट में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले लाइट कलर मॉथ उसमें ज़्यादा था, ठीक है, और ट्री वर्क के कलर वो लाइट होता है, राइट। सो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद ट्री का कलर जो बार्क होता है उसका डार्क हो जाता है, जिसमें लाइट कलर मॉथ इजीली विजिबल हो जाता है, और डार्क कलर उसका क्या, वो सर्वाइवल थोड़ा सा उसका इंक्रीज होता है। ओके, तो ये है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। और एक और इम्पॉर्टेंट ये एविडेंस है नेचुरल सिलेक्शन का, एक और इम्पॉर्टेंट है, वो थे ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन, जैसे कि द एवोल्यूशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ओके, so it is an example of ongoing natural selection that dramatically affects humans, is the evolution of drug resistant pathogens, matlab disease causing organism and viruses. This is a particular problem with the bacteria and viruses because they can produce new generation in a short period of time, and as a result resistant strain of these pathogens can proliferate very quickly. Okay, so under the strong selective pressure, only the fittest survivor, leading to resistance to antibiotic. So antibiotic resistance ऐसे ही आया है, ठीक है। So drug resistance pathogens, okay। So एक और बात है, rate of reproduction is many time higher than the rate of survival in all organism। ये भी सही है, ठीक है। Rate of reproduction is many times higher than the rate of the survival of the organism। okay, और जो पर्टिकुलरली उन्होंने 3 टाइप का क्या बोला था, फूड, स्पेस एंड रिसोर्स, उन्होंने क्या कहा था, फूड, स्पेस एंड रिसोर्स दे आर ऑल लिमिटेड, hence this factor limit the survival of organism and struggle for existence come in action। okay, so competition or struggle for existence is seen in all organism। it may be intraspecific, it may be interspecific, and it may be against the environmental, right? So you all know that what is interspecific and the environmental adversities, okay, and variation are always there. Variations are so abundant in nature that no two individuals of a species they are similar. So variation, it may be beneficial variation and it may be bad variation, right? So what beneficial variant इसका मतलब क्या है? बेनिफिशियल का मतलब, वेरिएशन बेनिफिशियल का मतलब क्या होगा? हाँ, बोलो। बेनिफिशियल के क्या मतलब है? मेक सर्वाइवल मोर पॉसिबल, high good reproduction capability, hence they will maintain high number, and bad variation or character declines the survival chances, okay, as well as mimicry and defense coloration. Mimicry and protective or defense coloration are the products of natural selection, and they are found in certain animals, you know that। तो कुछ टाइप ऐसे होता है, मतलब म्यूटेशन और मिमिक्री कुछ टाइप का ऐसे हो जाता है, वो प्रीडेटर के इजीली विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो वो मतलब एक टाइप का स्नेक है, मेरा वो नाम याद नहीं आ रहा है, वो ऐसे दिखता है, तो एक्चुअली स्नेक दे आर, वो नॉन पॉइजनस था, ठीक है, नॉन पॉइजनस, लेकिन उसका कलरेशन, बॉडी कलरेशन ऐसे हो गया जैसे मतलब वो उसको पॉइजनस लगे, ठीक है। तो ये गुड टाइप का एक मतलब बेनिफिशियल टाइप का
उसका वेरिएशन हुआ था। तो इसी चलते जो क्या होता है जैसे मान लो कि एंटलर का वेरिएशन, एंटलर का जो हॉर्न की जो साइज होता है बहुत बहुत बड़ा होता है, तो वो एक सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए भी सही होता है, लेकिन जब कोई भी प्रीडेटर उसको टारगेट करेगा तो वो ज़्यादा जोर से दौड़ नहीं पाएगा। तो ये वन काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये तो क्या बोल रहा हो मैं, बैड वेरिएशन। ओके, डिसएडवांटेज। सो लेमार्क डार्विनिज्म के भी क्रिटिसिज्म हुआ था, राइट। सो डार्विन का जो थ्योरी था वो कंप्लीटली एक्सेप्टेड नहीं था और रिजेक्टेड भी नहीं था, राइट। So the idea of evolution become controversial at that time. Okay, he said about the variation but failed to explain the region of variation. So उन्होंने ये नेचर के ऊपर छोड़ दिया, रीजन ऑफ द वेरिएशन के बात जब आए, because he was not having a good knowledge of genetics and heredity, right? So he explained that the survival of fittest, but could not express the arrival of the fittest. Okay, he said that good character pass on the next generation. Then why vestigial organ still found as it has no use in us right now. So he failed to explain presence of the vestigial organ also. Okay, सेक्सुअल सिलेक्शन उसके ऊपर वो भी क्रिटिसिज्म मिला क्या, तो सेक्सुअल सिलेक्शन के ऊपर सो इट इज एप्लीकेबल टू द स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ओनली, जैसे पीकॉक टेल, डियर एंटलस, टस्क ऑफ एलिफेंट, प्लमेज इन कॉक. It fails to explain why male can't select the best female for mating and why only female get right to select the male for the mating purpose. So आप देखे होंगे कि ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर स्पीसीज में फीमेल मेल को चूज करता है, राइट. सो ये उसका राइट है, लेकिन वो ऑपोजिट नहीं होता, मेल फीमेल को चीज नहीं कर सकता. जैसे कि अगर देखे होंगे कि डांस कौन करता है, पीकॉक, राइट. तो मेल पीकॉक, राइट, नॉट द फीमेल वन. डांस करता है मेल वन, नॉट द फीमेल वन. तो जो अच्छा डांस करता है तो वो उसको चूज करता है. एंड बर्ड्स के लिए bird song, right, there are many mating songs as well as dance, and elephant tusk. तो इसके वो एक हाई टेस्टोस्टेरोन इसका एक उसका पहचान है, राइट. तो ये सब इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो इसमें भी राइट किसका मिलता है, फीमेल को ही, नॉट द मेल्स. ओके, तो ये एक्सप्लेन उन्होंने नहीं कर पाया था जो सेक्सुअल सिलेक्शन था, ओके, डार्विन द्वारा. सो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म. तो क्रिटिसिज्म अगर आया तो उसके ऊपर न्यू डार्विनिज्म भी आया, ठीक है. तो न्यू डार्विनिज्म और उसको ही बोलता है क्या, मॉडर्न सिंथेसिस और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म. और उसको ही बोलता है क्या, मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. सो सिंथेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. ये जो थ्योरी है मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी ऑफ द इवोल्यूशन. ओके, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म. So it gradually changed into modern synthetic theory of evolution when the gap of Darwinian theory of evolution and the genetic basis of the variation made narrow. Okay, तो इसके साथ genetic basis का जुड़ा गया, तो फिर ये perfect हो गया है. Okay, so Darwin theory now possessed what it has lacked for a long time. Okay, and then it well tested theory of heredity. तो ये था modern synthetic theory. So modern synthetic theory incorporates knowledge
ideas and discoveries of genetics, evolution, taxonomy, biogeography, embryology, paleontology, and geography. Okay? The architecture of the modern synthetic theory include many scientists. They contributed enormously to this theory, such as डॉब्झिन्स्की के बुक है इवोल्यूशन का, डॉब्झिन्स्की, हुगो दी फ्रिस, जुलियन हक्सले, Sewell Wright. You may have heard about Sewell Wright effect. Hardy and Weinberg. You may have heard Hardy-Weinberg equilibrium, right? Iris Fisher and Haldane, Ernst Mayr and Stevens. Do you know Ernst Mayr? Who was Ernst Mayr? Who was Ernst Mayr? अर्नस्ट मेयर कौन था, बोलो। तो ये जो साइंटिस्ट का नाम मैंने लिया, ये याद रखना, ठीक है। कभी कभी वो दे देता है। तो अर्नस्ट मेयर का नाम पता नहीं क्या है, किसके लिए पॉपुलर है अर्नस्ट मेयर? यू डोंट नो? तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कौन सा? तो उसके क्या प्रपोज করেছে? यस। So modern synthetic theory and Darwinism, they differ in three important aspects. कौन कौन था? देखो, it recognizes the several mechanisms of evolution in addition to natural selection, like random genetic drift, mutation, gene recombination, gene migration, genetic drift, right? तो genetic drift का दो इफेक्ट होता है, Sewell Wright effect, एक और था bottleneck, right? And non-random mating and hybridization. It recognizes that the characters are inherited as distinct entities called genes. Characters that inherited as discrete entities called genes. So variation within a population are due to the presence of a gene or multiple alleles. Okay? It is postulated that the speciation is usually due to the gradual accumulation of small genetic changes over the long period of time, which leads to large changes. Okay? तो ये था, ये तीन डिफरेंस था. नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट डज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी सेज. ओके, सो इस 5 मिनट का मैं ब्रेक देता हूँ, ठीक है. उसके बाद इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है. फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, 5 मिनट बाद इसके ऊपर बात करते हैं.
Students, are you all here? Yes, sir. Okay. देखो थोड़ा सा तेज बोलना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कुछ नहीं पूछ सकते हो. ओके, यू आर फ्री टू आस्क एवरीथिंग. ओके, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा तेज पढ़ना हो रहा है. So, what does modern synthetic theory of evolution says? So, according to modern synthetic theory, पहले कौन कौन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन है वो बोला था शायद. ठीक है. सो डॉब्जनस्की, हुगो de Vries, हक्सले, सिल्वरेट, हर्डीबिनबर्ग, फिशर, हैल्डेन, मेयर, स्टेवेंस, सिम्पसन. ओके. So, according to the modern synthetic theory, environmental effect first, the environmental effect of individual phenotype do not affect the genotype. So, it cannot pass to the next generation as acquired character are not inherited. Right? तो जो जिसने लेमार्क ने जिस बात बोला था उस बात को इसने रिजेक्ट करके ये दिया था. फर्स्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट और एनी इंडिविजुअल फिनोटाइप डू नॉट अफेक्ट द जीनोटाइप. जीनोटाइप फिनोटाइप को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप जीनोटाइप का इफेक्ट नहीं कर सकते. लेकिन इसमें क्या होता है, देखो एनवायरमेंटल इफेक्ट ये बोल रहे हैं ना, लेकिन एनवायरमेंटल इफेक्ट एक जगह इफेक्ट करता है. कौन जगह? सपोज कैलोटिस, यू नो दैट गार्डन लिजर्ड, तो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन का एक प्रोसेस है. राइट. सो किस टेम्परेचर में उसका सेक्स डिटर्मिनेशन, किस टेम्परेचर में उसका एग है, इसके ऊपर डिपेंड करके मेल या फीमेल वो होता है. राइट. ज़्यादा टेम्परेचर मेल, कम फीमेल. राइट. तो एनवायरमेंटल इश्यूज में है, लेकिन क्या बोला इसमें, इसने क्या बोला, एक जनरेशन के दूसरे जनरेशन बात जो बोला, सो ये अलग चीज़ है. सो इंडिविजुअल फिनोटाइप और एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप, मतलब किसी भी एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से इंडिविजुअल जो फिनोटाइप होता है वो जीनोटाइप को इफेक्ट नहीं करता, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास भी नहीं करेगा. ओके. इवोल्यूशन. नेक्स्ट, इवोल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. किसने बोला था ये? डार्विन ने बोला था. राइट. इवोल्यूशन, it is a natural product of the it is the product of natural selection. Another point, phenotype is different from the genotype, and phenotype differences may be due to the genetic differences or due to the environmental effect. Phenotype is different from the genotype, and phenotype differences may be due to the genetic differences or due to the environmental effect. Okay. Next, heredity variations are based on genes that retain their identity as they pass through generation. And mutation के ऊपर बात जो बोला इस theory में, mutation are sudden heritable changes. Okay, it can happen in chromosome level or the gene level. You all know that. Next, evolution is a gradual process and is not goal directed. Evolution need not always lead to the better phenotype. Evolution can progressive type of as well as regressive. Prokaryotes evolve faster than eukaryotes due to the small generation time. ठीक है. Next, gene pool के बात भी किया गया. Gene pool is the sum total of the all different genes and their alleles present in a population. Okay. तो gene pool का definitely इसका कभी कभी आता है. What is gene pool? The gene pool is the sum total of different genes and alleles present in the particular population. So it is the gene pool that evolves as new genes, right? The accumulation of many mutations add up to large scale changes which finally lead to formation of the new species. तो एक जीन पूल में अगर कोई भी चेंज आए तो ये एक पूल टाइप का,
ठीक है, यहाँ पे सब जीन और एलिल्स है, ठीक है। इसके ऊपर तो हम लोग ये पॉपुलेशन देखें तो ये ए जीरो टाइप, ये कैपिटल स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। अगर किसी में भी कोई भी चेंज आए तो वो अगर लार्ज स्केल में वो चेंजेस होता है तो वो नया स्पीसीज फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि स्पीसीएशन में रिजल्ट फ्रॉम द जियोग्राफिकल आइसोलेशन, स्पीसीएशन में रिजल्ट फ्रॉम जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ओके। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है, 2 कॉलम करके ए बी सी डी, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी। ए में है वालेस, लेल, लेमार्क, कोविया। यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वर्ड कैरेक्टर, बी नेचुरल सिलेक्शन, इज डिफरेंशियल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। प्रोसेस दैट ऑल्टर, ये मतलब वर्क, उसको वर्क, ठीक है, वर्क साइंटिस्ट का नाम है वर्क। प्रोसेस दैट ऑल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू टाइम, डी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर्ट्स जियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री हैव बीन shaped by periods of catastrophic extinction and new creations, ओके। और ई में ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी recapitulates phylogeny, ठीक है। तो ये 2 मिनट टाइम देता हूँ, इसके अंदर इसको सॉल्व करके देखो। डी টা একবার বলবে। On D, Earth's geology and natural history have been shaped by periods of catastrophic extinction and new creation. বলছি 2 নাম্বারটা কি লিখেছো? Natural selection is differential না না survival. ওয়ালেসের নিচেরটা, ওয়ালেসের নিচেরটা। Lel, L-Y-E-L-L.
Okay, try to answer. जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स। सबने दे दिया क्या? कशिश, सौभिक, सुष्मिता, रेशमा। ओके, सो देखो, चेक कर लो यहाँ पे। फर्स्ट वालेस जो है, वालेस इसके ऊपर काम किया है। नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंशियल सर्वाइवल। यस। ले जो है वो किसके ऊपर काम किया है? प्रोसेस दैट ऑल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू टाइम। ठीक है। लेमार्क, लेमार्क किसके ऊपर काम किया है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वार्ड कैरेक्टर। यस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वार्ड कैरेक्टर। उसके बाद आता है कुवियर। कुवियर अर्थ जियोलॉजी के ऊपर। अर्थ जियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री हैव बीन शेप्ड बाय पीरियड्स एंड कैटास्ट्रोफिक एक्सटेंशन। सब लोग चेक कर लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। वेरी गुड। सो एनी डाउट्स? इस पोर्शन के थ्रू कोई भी डाउट है? हम्म, बोलो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। देखो एक और क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, ठीक है। मैं 4 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इवोल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Evolution is goal oriented. Third, prokaryotes evolve faster than eukaryotes. Fourth, evolution need not always lead to better phenotype. Which statement or statements is wrong? जल्दी, 1 मिनट टाइम।
कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट्स? जल्दी। हो गया सबका? जल्दी, जिसने भी आंसर नहीं दिया जल्दी करो। देखो, evolution is the product of natural selection, correct? Prokaryotes evolve faster than eukaryotes क्योंकि ये क्यों short time. Yes, yes. Evolution did not always leads to a better phenotype. Of course, कभी कभी तो रिग्रेसिव टाइप का होता है. एंड evolution इज गोल ओरिएंटेड ये नहीं है, क्योंकि evolution डायरेक्शनलेस, राइट? किसी भी एक पर्टिकुलर गोल टाइप का ऐसा नहीं होता है. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और डाउट, यू कैन आस्क मी राइट नाउ.